ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر منتخب۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان، کہا ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی، آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دیں گے۔ مشرق وسطی شعلوں کی لپیٹ میں دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قونصل خانے کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت، پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر درجنوں میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے ریڈار پر میزائل حملہ، شدید نقصان پہنچا۔ امریکی ریڈار کی رینج 5000 کلومیٹر تک اور مالیت $1 ارب سے زائد تھی۔ دبئی میں قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ پر ڈرون گرا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مختلف ممالک سے نکل چکے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق، واضح کیا کہ مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، تہران کو بیلسٹک میزائل کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھوری جارحیت، ایرانی دارالحکومت تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں تباہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عمارت پر حملہ، ہمدان، اصفہان اور شیراز، قم، یزد، فارس اور سنندج شہر پر شدید بمباری۔ شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی، پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل۔ ہلال احمر کے مطابق 153 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر 1039 بم اور میزائل داغے گئے۔ عالمی توانائی ایجنسی کی نتنز ایٹمی مرکز کو نقصان پہنچانے کی تصدیق، سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ IAEA کے مطابق تابکاری کے کوئی آثار نہیں ملے۔ ایران میں 1700 مقامات پر حملے کیے، امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور ڈرون مار گرایا، ویڈیو جاری۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات سے صاف انکار، کہا نہیں ہوں گے۔ ایران کی ایئر فورس، نیوی اور قیادت ختم کرنے کا دعویٰ، کہا وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران میں سب کچھ ختم کر دیا، حملوں کی تیسری لہر آنے والی ہے، امریکہ کے پاس لامحدود وسائل موجود، دفاعی کمپنیز تیزی سے ایسے ہتھیار تیار کر رہی ہیں جو ہمیں درکار ہے۔ ایران ان ممالک پر حملہ کر رہا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی جارحیت، ایرانی دارالحکومت تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں تباہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عمارت پر حملہ، ہمدان، اصفہان اور شیراز، قم، یزد، فارس اور سنندج شہر پر شدید بمباری۔ شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی، پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل۔ ہلال احمر کے مطابق 153 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر 1039 بم اور میزائل داغے گئے۔ عالمی توانائی ایجنسی کی نتنز ایٹمی مرکز کو نقصان پہنچانے کی تصدیق، سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ IAEA کے مطابق تابکاری کے کوئی آثار نہیں ملے۔ ایران میں 1700 مقامات پر حملے کیے، امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور ڈرون مار گرایا، ویڈیو جاری۔ ایران کا خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے ریڈار پر میزائل حملہ، شدید نقصان پہنچا۔ امریکی ریڈار کی رینج 5000 کلومیٹر تک اور مالیت $1 ارب سے زیادہ تھی۔ ایران کی وقفے سے اسرائیل پر بھی میزائلوں کی بوچھاڑ، آئرن ڈوم بھی فیل، تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں دھماکے۔ اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گر گیا۔ دبئی، ابوظہبی، قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ بحرین میں امریکی اڈے پر 20 ڈرون سے حملہ، متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ بندرگاہ پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے آتش زدگی۔ امریکی کمپنی ایمیزون کے مشرق وسطی میں 3 ڈیٹا سینٹر تباہ۔ آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی زندہ اور صحت یاب ہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ میزائل حملے، بمباری، دھماکے، مشرق وسطی نئی جنگ کی لپیٹ میں۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بھی 2 دھماکے۔
सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत जुज़वी मुतासिर, जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। सऊदी वजारत खारजा की हमले की मजम्मत, कहा अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। जारहियत का जवाब देने इख्तियार हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फजाई गश्त। अमरीका की तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल। कुवैत के बाद बैरूत में भी अमरीकी सिफारत खाना बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इसराइल और 14 मशरिक़ वुस्ता ममालिक में मौजूद अपने बाशिंदों को फौरी इनखला का हुक्म। वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मजीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम इक़दाम। तमाम पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द की महमूद अशरफजई से मुलाकात, शिरकत की दावत। PTI का इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी लेकर दी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका। ईरान से कहा इसे मद्देनजर रखा जाए। सबने देखा सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को मुल्क में गलत रंग देना ठीक नहीं। इसहाक डार की सिफारती कोशिशों पर सेनेट में ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ, हम किसी तसादुम के हक में नहीं। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हमने हर फोरम पर तेहरान के हक में आवाज बुलंद की। बैकग्राउंड में जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। फील्ड मार्शल ने भी अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की। राबते अब भी जारी हैं। ईरान में इमरजेंसी सूरत हाल है, ताहम मुल्क रुका नहीं। जिंदगी मामूल के मुताबिक है। अमरीका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अब सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान की सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमलों की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात हमारे अहदाफ में शामिल नहीं। सऊदी अरब से राबते बरकरार हैं। हर आंख अश्कबार, हर दिल सोगवार। मीनाब शहर में इसराइली हमले में शहीद 160 तालिबात की नमाज जनाजा। हजारों अफराद की शिरकत। ताबूतों पर बच्चों की तस्वीर आवेजा। शुरका की इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खुद मुख्तारी पर कभी समझौता किया न करेंगे। अपनी सरजमीन का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। तर्जुमान अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है तवील अरसे तक मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। जोई पर 812 ड्रोन दागे गए। 755 को फजा में ही तबाह किया। ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी हुए। वज़ीर मईशत का कहना था किसी भी बहरान से निमटने के लिए मुतबादिल प्लान मौजूद है। दरामदात के हवाले से कोई परेशानी नहीं। आयतुल्लाह खामेनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरे हैक करने का इंकिशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक इन कैमरों के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखी। आला सतह इजलास की रिपोर्ट मिलते ही हमले का मौका मिल गया। सदर ट्रंप के वॉर रूम की तस्वीर जारी। अमरीकी सदर फ्लोरिडा में अपने घर से हमलों की निगरानी करते रहे। इसराइल की लबनान पर भी चढ़ाई। जमीनी कार्रवाई का आगाज। 16 मकामात से सरहद उबूर। लबनानी फौज ने 7 पोस्टें खाली कर दी। सेहूनी तैयारों की बमबारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। जनूबी लबनान के 59 देहात को इनखला की वार्निंग। 30 बेघर अफराद पनाहगुज़ीन कैंप मुंतकिल। हिजबुल्लाह का इसराइल की रमाद डेविड एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई। कंट्रोल रूम और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शदीद मंदी के बाद कम बैक, एक साथ 6 हदें बहाल, 5,159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद, 44 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन। खित्ते में कशीदगी, आलमी मईशत पर खौफनाक असरात, जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बेंचमार्क इंडेक्स 7.24% गिर गया, चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट, जापानी स्टॉक मार्केट भी 4% गिर गई, दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज दूसरे रोज भी बंद, कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। अबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद, सैकड़ों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज महसूर, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गईं, अमरीकी खाम तेल $72 और बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल पर फरोख्त। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से भारत को शदीद मुआशी धचका, एनर्जी कंपनीज ने इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई महदूद कर दी। कशीदा सूरत हाल, फजाई ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल, हजारों मुसाफिर मशरिक़ वस्ता में महसूर, 12,500 से ज़ायद परवाजें मनसूख, दुबई, दोहा, शारजा, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और अल मक्तूम के हवाई अड्डे शामिल, पाकिस्तान से भी मशरिक़ वस्ता की मजीद 155 परवाजें मनसूख, मजीद 350 से ज़ायद पाकिस्तानी ताफ्तान के रास्ते बाहिफाजत कोयटा पहुँच गए। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर रूनमा होने वाला वाक़या अफसोसनाक, तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जाफरिया अलायंस के रहनुमाओं से गुफ्तगू, अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा राई, सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल। बानी PTI की आंख के इलाज से बिनाई में वाज़े बेहतरी, पेम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंख के मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। अडियाला जेल में बानी की आंख का फॉलोअप मुआयना, दूसरे इंजेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा, तहरीक इंसाफ ने बानी की आंख से मुतालिक पेम्स की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ऑपरेशन गजब लिल हक 7वें रोज में दाखिल, तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 464 हो गई। वजीर इत्तलात अता ताड़र के मुताबिक दुश्मन की 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 56 ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह, नंगरहार में खुगानी बेस मलियामेट। टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन, T20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला, आज पहला सेमीफाइनल, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। प्रोटीज अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त, कीवीज को इन्फॉर्म एडन मार्क्रम, डीकॉक और मिलर के चैलेंज का सामना। न्यूजीलैंड का ज्यादा दारोमदार सेंटनर, रविंद्रा और फिन एलन पर होगा। ग्रुप स्टेज में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बासानी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान में 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण, ब्लड मून का दिलकश नजारा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में मुकम्मल चांद ग्रहण, शहरियों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज।